Jai Hind cadets, my name is Dr. Sonone. I hope you have seen my previous video. In that I have given you such important information about the NDA NA examination, and I have also covered a basic point or important point from mechanics, that is motion in one dimension. So I hope you have seen that and you got something important from that video. So cadets, today I am going to present in front of you a second point from the motion in one dimension that is very important. If you learn these graphs, then you will get we can say 1 or 2 questions in a NDA NA examination, and this question of the graph is compulsory in NDA examination. So we will start today's session. So first of all, the topic name is motion in one dimension. That's why we will define the motion, and motion is nothing but the movement of an object. So there are two types of motion. Two types of motions are uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion and non-uniform motion. You may already studied about the uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion means what? If any object is moving in a straight line, or we can say in one dimension, then if the velocity of the body is constant, then we can say that the motion of the object is uniform motion. And second type of motion is nothing but the non-uniform motion. If any object is moving in a one-dimensional path, or we can say in a straight line, if the velocity of the object is not constant, then we can say that motion is nothing but the non-uniform motion. In previous lecture, I have given you a very important idea about the position of the object, distance of the object, displacement of the object, velocity of the object, and speed of the object. And in that I have also covered a point about the acceleration. So the important point which we can say, the average speed, relative speed, again and again there is question asked from the points, that is average speed and relative speed, that also we have covered in a previous lecture. So today we will see the graphs depends on position time, velocity time, and acceleration time. In that first graph we can see, that is position time graph. So students, let's see. First of all, we must remember about the uniform motion and non-uniform motion. If any object is in uniform motion, it means that object is moving with the constant velocity. The velocity of the object never changes. It means it is moving with the constant velocity. And the second one is non-uniform. So non-uniform, we already said, velocity is not constant. So when we draw graph of position versus time, so we must know, before drawing the graph, we will study about the equation that is useful for the graph. That is mathematical equation y equal to f of x, where y is a variable and it is depend on the variable that is x, or we can say x is a function of y. There y is a dependent variable. In this equation, y is a dependent variable and x is a independent variable. Independent variable, it means the value of the x will increase by its own order, but as x increases or decreases, or we can say change, that change will ultimately affect the value of y, right? So the axis which we draw here, that is y and x axis. So those quantity which are independent quantity are always drawn on the x axis, right? And here the y coordinate, which is dependent variable, on y axis we will only plot a quantity which are having, we can say, the dependent variable we will draw on the y axis. So let's start. There are the different conditions for position versus time graph. Different condition. In that first condition we will see, the first condition is if object is at rest. First condition is what? If object is at rest. So we will draw the graph very simply.
Here on y axis we will plot displacement, or we can say position. We will write it as a symbol S, and time on the x axis. I already told you by the mathematical equation, the independent variable, that is time, is always plotted on the x axis, and dependent variable is always plotted on a y axis itself. Okay, so time is independent variable. Time never stops for anything, right? It means it is independent variable, but displacement is a dependent variable. The condition is what? If object is at rest, it means there is no change in position of the object. In previous lecture we have seen what is position of the object. So if the position of the object does not change, it means what? It means if we draw here one point, the graph of the displacement time when object is at rest is like this. Means time is in increasing order, time is increasing. Here we will plot time 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, but if object is at rest, it means object position does not changes. The graph will look like this, parallel to x axis. We can say graph is parallel to x axis. Okay, so this is the condition. Object is at rest, it means what? Displacement of the object is 0. What about the velocity of the object? Then we can say velocity is nothing but the what? Velocity is displacement upon time. If displacement is 0, it means velocity of the object is also 0. Means object is at rest, and velocity is only in terms when only acted or only exist when object is in motion. So object is at rest, velocity is 0. Also we can say acceleration is also 0. Right? This one is the first graph when object is at rest. The second graph we can say, if object performing which motion? Uniform motion. Uniform motion. Right? So in that, if you draw a graph, time on a x axis, displacement on a y axis. Uniform motion means what? Previously we have seen uniform motion means velocity equals to constant. If velocity is constant, it means what? Change in displacement. The value of change in displacement is directly proportional to value of change in time. Right? So, if we draw here graph, the graph look like this. The change in displacement is equals to change in time, or we can say proportional to change in time. Change in displacement directly proportional to change in time. Here we can write the coordinates like S1, T1, S2, T2, right? S1, T1, S2, T2, right? And the displacement or the velocity we can draw here. Velocity is nothing but the change in displacement upon change in time. The graph is a straight line graph originated from the 0. If we consider the object is performing uniform motion, but the initial displacement of the object is not a 0, मतलब वो रेस्ट से शुरू नहीं हुआ है, then that time we will draw the graph like this. Displacement, here is time. Graph will start from this, where t is not equals to 0. This graph shows t equal to 0. Graph starts from the 0. But here we can say t is not equal to 0, and the graph will look like a straight line graph. Exactly. Right? This one is the second condition. Right? Third condition we will draw. Third condition is what? Object is performing motion, but that motion is non-uniform motion. Non-uniform motion means what? Velocity is not equal to constant. Velocity is not constant. That time when we plot a graph, displacement versus time, if velocity is not directly proportional, we can say the velocity is not constant, it means displacement is not directly proportional to time. The order of displacement increasing is different than the order of time increasing. That time graph will look like this, parabolic graph. The graph is like parabolic graph. There is also two conditions. If graph is starting from the time equals to t equals to 0, then graph will start or look like this. If we say
time is not equal to 0, then graph will look like this. So this one, nothing but the two graphs. These are the two graphs which shows what? Which shows non-uniform motion, velocity not equal to constant. When we write the formula s2 minus s1 upon t2 minus t1, if we put the values there, here in the equation, then what happened? The graph will look like a parabolic graph. These are the three conditions we can say which shows by the position versus time graph. First one is if object is at rest, the graph is straight line and parallel to the x-axis. And second one is what? Graph is straight line starting from the 0. But that condition is of a uniform motion, v equal to constant. Here we looks the velocity equals to constant. And here the time t not equals to 0, then we can say the graph starts from the displacement s equal to something, right? And third condition is non-uniform motion where v is not equal to constant. That time graph is parabolic graph. तो आप लोगों को ये रिमेंबर करना है कि ग्राफ कौन से कंडीशन में कैसे आएगा. आपको 4 ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन में, तो आपको इसमें देखना है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बोला है मतलब ग्राफ डायरेक्टली ऐसा आना चाहिए. पैराबोलिक ग्राफ रहेगा तो आपका रॉन्ग आंसर रहेगा, या फिर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो रॉन्ग रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी दिख रहा है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी नहीं है. यहाँ पे डायरेक्ट s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका. देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. देन हियर इज ऑल्सो t नॉट इक्वल टू 0. इस पे भी आपको क्लियरली ध्यान देना है. हियर इज ऑल्सो आपको ध्यान देना है कि t इक्वल टू 0. दीज आर द 3 कंडीशन ऑफ द पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके, सो नेक्स्ट हमारा रहेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, स्टॉप. तो हमने देख लिया पोजीशन टाइम ग्राफ, 3 कंडीशन उसकी देख ली, बराबर. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ वी विल सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द 3 कंडीशन which we have seen in a position time graph also. Okay, so velocity versus time graph. The first condition for velocity time graph is we can say object is at rest. यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये तो बात ये हो गई कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इसका मतलब देयर इज नो मोशन. और वेलोसिटी कब एग्जिस्ट में आता है? व्हेन बॉडी इज इन मोशन. और बॉडी मोशन में, इसका मतलब उसके अंदर वेलोसिटी जरूर होगी. सो इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट मीन्स वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बिकम 0. सो वी विल ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस. हियर इज वेलोसिटी एंड वेयर इज टाइम. The value of v equal to 0 is here. So time will go on increasing but velocity is equals to 0. The graph will look like this. तो हम लोग यहाँ पे भी प्लॉट नहीं कर सकते उसको, बस हम लोग ये वाली लाइन को कंसिडर करेंगे. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0. तो सिंपली आपको x वर्सेस y का यहाँ पे ग्राफ कैसे मिल रहा है? ग्राफ मिल रहा है आपको लाइक द लाइन इज we can say overlap with the x axis, that is equal to we can say v equal to 0. अभी सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है? सेकेंड कंडीशन हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन की. लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि आप एक तो वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर आप डिक्रीज कर सकते हैं, राइट. So if we can say uniform motion, कौन सा मोशन रहेगा यूनिफॉर्म मोशन? दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन कौन से टाइप का? यूनिफॉर्म मोशन टाइप का. उस टाइम पे हम लोग कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. यहां से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब भी वही होता है, वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट. तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन वी कैन से v इक्वल टू कांस्टेंट. तो v इक्वल टू कांस्टेंट कब लिखेंगे हम लोग? जब हमारा ग्राफ किस तरीके से रहेगा? वेयर v इक्वल टू 1 वैल्यू दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. v चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये पैरेलल रहेगा. किसको? एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा ये लाइन, राइट. ये किसका ग्राफ हो गया? यूनिफॉर्म मोशन का. लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में आपको एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ देखना है, तो ग्राफ किस तरीके से होगा? अभी आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी दिखना चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो, जैसे हम लोग बोलते हैं 4/2, 8/4, दैट वैल्यू रिमेन सेम, दैट इज 2.
उस तरीके से यदि हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ शुरू होगा यहां से, विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन भी यहां पे दिख रहा है आपको, और दूसरी बात वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और दूसरी बात ये एक्सेलरेटेड मोशन भी है मतलब आपका वैल्यू इंक्रीज भी हो रहा है एक्सेलरेशन का। तो इस तरीके से हम लोग उसको प्लॉट कर सकते हैं, राइट। v वर्सेस t का ग्राफ व्हेन मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। सो हियर वी कैन से एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो हम लोग बोलेंगे वो वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्सेलरेट किया है। बट वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे मतलब क्या रहेगा, वेलोसिटी यहां पे फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, यहां पे v1 वैल्यू मिलेगा, यहां पे v2 वैल्यू मिलेगा, तो वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, टाइम इज ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है और यहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको मिलेगा पॉजिटिव। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, और वी कैन से यूनिफॉर्म मोशन विथ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अभी दूसरा हम लोगों को ग्राफ यहां पे आएगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसमें कैसे लिख सकते हैं हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो एक्सेलरेटेड तो देख लिया, अभी ये तो एक्सेलरेटेड कब, यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों ने और एक कंडीशन देखा कि v इक्वल टू कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ यहां पे मिल गया हम लोगों को। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में भी एक्सेलरेटेड मोशन है तो आपका ये कंडीशन रहेगा जहां पे v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। दूसरा भी एक ग्राफ हो सकता है आपका, वो हो सकता है पैराबोलिक ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है। यहां पे भी आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है और v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, बराबर, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म का कंडीशन भी दिखा रहा है और एक्सेलरेशन भी आपको यहां पे पॉजिटिव मिल रहा है, राइट। ये तो पॉजिटिव के लिए हुआ। दूसरा ग्राफ में नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेशन भी आप बोल सकते हैं, उसके लिए भी प्लॉट कर सकता हूं। यदि आपका एक्सेलरेशन निगेटिव है, इसका मतलब आपकी वैल्यू जो रहेगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। ये पैराबोलिक ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, यहाँ पे a की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, मतलब निगेटिव हो जाएगी, फिर से v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें आप और एक एडिशन कर सकते हैं। आपको यदि बोला गया कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो ये ग्राफ अलाउ हो सकता है। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यदि वी कैन से इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट टाइम हम लोग ग्राफ इस तरीके से निकाल सकते हैं, वेर u इज नॉट इक्वल टू 0। या फिर इसको मैं यहां से शुरू कर सकता हूं, यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। तो डिफरेंट टाइप के ग्राफ इसमें हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। पोजीशन टाइम में भी अलग अलग कंडीशन देखा हमने, वेलोसिटी टाइम में भी जो अभी तक क्वेश्चन आए एनडीए एग्जाम में, उस तरीके से डिफरेंट टाइप के ग्राफ आपको पूछा जा सकता है। लॉजिक पे डिपेंड करता है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म में कांस्टेंट वेलोसिटी होता है और नॉन यूनिफॉर्म में होता है वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कंडीशन के ऊपर ये ग्राफ बेस्ड है। ज्यादातर आपको दिखाई दिया होगा कि रेस्ट में रहेगा तो किस तरीके से ग्राफ आ रहा है, पोजीशन और वेलोसिटी में, उसका कंपैरिजन याद रखो। फिर इसमें यूनिफॉर्म मोशन में आपको वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ इस तरह से, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर इसको रिटार्डेशन भी आप लोग बोल सकते हैं। इस तरीके से ये ग्राफ होगा। उसमें भी आपको कंडीशन बताया, u नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो वो नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन से ही शुरू होगा, यहां से भी ये ग्राफ शुरू हो रहा है। तो आप जब 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे तो 4 ऑप्शन से आप पता कर सकते हैं कि जो कंडीशन आपको दिया है ग्राफ के लिए वो कहां पे सेटिस्फाइड हो रहा है। इस तरीके से आप ग्राफ स्टडी कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ में आया। ओके, अभी बात आती है लास्ट वन, दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। लास्ट वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन को हम लोग 2 तरीके से बोल सकते हैं। यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे ऑफ कोर्स, बट उसकी वैल्यू निगेटिव रहेगी। यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इट मींस दैट इज रिटार्डेशन। जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर आप घुमाते तो गाड़ी आगे जा रहा है, मींस देयर इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बट गाड़ी का ब्रेक लगा रहा है, इट मींस व्हाट, यू आर डिक्रीजिंग द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है,
एसेलरेशन आपको पता है, एसेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वी कैन से v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये इस फॉर्मूले से हमको पता चलता है इफ v2 इज ग्रेटर देन v1 देन एसेलरेशन इज पॉजिटिव एसेलरेशन, ये की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी आपको। बट इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव एसेलरेशन। और निगेटिव एसेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है। तो इसको दो ग्राफ से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट ग्राफ में लिखता हूं फॉर पॉजिटिव एसेलरेशन, एसेलरेशन वर्सेस टाइम मैंने यहां पे लिखा। पॉजिटिव एसेलरेशन आप कैसे बोलेंगे, एक तो वैल्यू ऐसे रहेगा तो उसको ग्राफ इज लुक लाइक दिस, पैराबोलिक ग्राफ है लेकिन ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां पे एसेलरेशन रहेगा पॉजिटिव। एसेलरेशन पॉजिटिव है, फिर से कंडीशन है v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू नहीं चाहिए एसेलरेशन का, तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जब कांस्टेंट रहेगा तो एसेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इफ v1 इक्वल्स टू v2 रहेगा तो एसेलरेशन बिकम जीरो। तो इस तरीके से ग्राफ रहेगा जिसको हम लोग एसेलरेटेड मोशन के लिए भी बोल सकते हैं, एसेलरेशन। और सेकेंड ग्राफ जो रिटार्डेशन का ग्राफ है उसको हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, रिटार्डेशन का और दूसरा मीनिंग है निगेटिव एसेलरेशन। तो ग्राफ कैसा रहेगा आपका, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, राइट। तो मैं यहां पे लिखता हूं इफ u नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा आपका, u नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां पे एसेलरेशन मैंने a लिख दिया, यहां पे टाइम t लिख दिया मैंने। तो इस तरीके का ग्राफ आप रिटार्डेशन का ग्राफ बोल सकते हैं, या फिर यहां से शुरू हो रहा है उसको भी आप रिटार्डेशन का ग्राफ बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन एसेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीनों ग्राफ जो है, तीनों तरीके के ग्राफ एनडीए के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है, डेफिनेटली कंपलसरी क्वेश्चन है। तो मैं ऐसे सोचता हूं कि आपका एक क्वेश्चन का मार्क्स फिक्स हो गया, 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया ग्राफ का। और प्रीवियस लेक्चर में आपको जब मैंने एवरेज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था, उसके फॉर्मूलेस पढ़ाए थे और कुछ बेसिक चीजें आपको जिसमें मैं बताया, तो वो आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके के तीन ग्राफ आप याद रखो, राइट। अभी बात आती है कि ग्राफ रिलेटेड टू द फ्री फॉल। हम लोगों ने ये तीन ग्राफ तो पोजीशन के देखे, पोजीशन वर्सेस टाइम के, वेलोसिटी टाइम के और एसेलरेशन टाइम के। अभी हमारा पॉइंट ये रहेगा कि ग्राफ हम लोगों को इस टॉपिक में, मोशन इन वन डायमेंशन में, और किस तरीके का आ सकता है। तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल वाला कंसेप्ट। तो फ्री फॉल के साथ साथ हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन भी पढ़ लेते हैं, राइट। तो आपका उसमें भी वो कवर हो जाएगा। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा ही रहेगा। देयर आर 3 इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग जिसको बोलते हैं। 9th-10th में भी आपने ये इक्वेशन पढ़े। फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा यहाँ पे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दीज आर द 3 इक्वेशन। और ये 3 इक्वेशन में आपने देखा रहेगा देर आर 4 क्वांटिटीज दैट नथिंग बट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड 4 क्वांटिटीज आर व्हाट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड टाइम। So first equation is known as velocity time equation, second equation is velocity displacement equation, and third equation is displacement time equation. ऐसे भी हम लोग ग्राफ निकाल सकते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का, इसके भी ग्राफ निकाल सकते हैं। बस हम लोग को फ्री फॉल देखने के लिए इस इक्वेशन को स्टडी करना पड़ेगा, और एक सेपरेट आपको लेक्चर्स में ये मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी कराने वाला हूं। तो हम लोग इसमें फ्री फॉल वाला कंसेप्ट देखते हैं। फ्री फॉल एक्चुअली क्या होता है, फ्री फॉल किसको बोला जाता है। पहली बात तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप यदि यहां पे ऊपर हाइट पे लेके जाओगे और वहां से ड्रॉप कर दोगे आप उसको, तो क्या होगा, उसका जो मोशन रहेगा उसको फ्री फॉल बोला जाता है। एंड बॉडी इज ऑल्सो नोन एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। व्हेन बॉडी इज फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, दैट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द फ्री फॉल और फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आपको और एक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल देना चाहता हूं कि आप एक लिफ्ट में बैठे हैं, बराबर, और लिफ्ट का वायर यदि ऊपर से टूट गया, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए, टूट गया, तो जिस तरीके से आप नीचे आएंगे, दैट एग्जांपल इज नथिंग बट द फ्री फॉल। और मैं आपको एक जनरल एग्जांपल फ्री फॉल का दे सकता हूं, मोशन ऑफ द मून।
मून का जो मोशन है वो फ्री फॉल मोशन है, वो आना तो चाहता है अर्थ की तरफ लेकिन आ नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है। तो एकदम उसका जो मोशन है फ्री टाइप का, उसको फ्री फॉल बोला जा सकता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन जो देखा है उसको हम लोग फ्री फॉल कंसेप्ट में कैसे लगाएंगे। एक तो पहली बात मैं कंसिडर करता हूं कि एक ग्राउंड है और यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर फेंका है एट हाइट h, राइट, हाइट h है, उसका डिस्प्लेसमेंट h बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन बात यह आती है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इट मीन्स व्हाट, जो ग्रेविटी नीचे की साइड एक्ट होता है वो क्या करता है, ग्रेविटी अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी क्या करता है, अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा व्हेन, क्या, जब ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है, राइट। सेकेंड बात ये आती है, यदि वही ऑब्जेक्ट जब यहां पे जाके एक पोटेंशियल एनर्जी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, तब जब वो नीचे वापस ग्राउंड पे आएगा तब क्या होगा, जो एक्सेलरेशन उसको मिलेगा वो डायरेक्टली इक्वल टू ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी आते टाइम सपोर्ट करेगा। कोई चीज को ऊपर से फेंक दो, आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको तो आ जाएगा वो नीचे, मतलब फ्री फॉल है, फ्री फॉल। ऐसे टाइम पे एक्सेलरेशन, ग्रेविटी क्या करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सपोर्ट्स द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से सपोर्ट्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोर्ट करता है, इसलिए मैं यहां पे A इक्वल टू जी बोलता हूं, पॉजिटिव जी, राइट। तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन भी आप यहां पे दो तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, ग्राफ तो निकालने वाले हम लोग, यदि ऐसा दिया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अपवर्ड मोशन में, या उसको फेंक दिया इन अपवर्ड मोशन, तब उस टाइम पे क्या है, तब आपको A को रिप्लेस करना है -g से, और जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तब A को रिप्लेस करना है +g से, और ये सब इक्वेशन v इक्वल टू u माइनस gt हो जाएगा इस कंडीशन में, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs हो जाएगा, देन s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा ये कंडीशन में। और बाकी व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, दैट कंडीशन में a इक्वल टू +g, a को सिर्फ आपको रिप्लेस करना है g से। अभी बात आती है इसके ऊपर जो ग्राफ बेस्ड है, ओके, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जस्ट आपको जो बताया मैंने वो आपको समझ में आया रहेगा, यही मैं सोचता हूं। आई होप कि आपको इससे बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, और इससे जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो आप एनडीए में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। तो मैं सोचता हूं कि आपको ये पॉइंट सब क्लियर हुए रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू।